ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। Thank you very much, Jidveer ji, and good afternoon to all our listeners. ਜੀ ਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ OSFI ਦੇ ਚੀਫ ਦੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਾਮੀ TV ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ लास्ट टाइम 50 बेसिस नहीं होते तब तक तो ठीक सी पर विद इन द लिमिट 5.2 लेकिन 50 बेसिस ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ +2 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ 4 ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ +2 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਨ ਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ। ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਮ -0.6 ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁਣ 3.70 ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 3.7 ਹੈ ਹੁਣ 3.7 ਉੱਤੇ -0.6 ਤੇ 3.1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਅੱਜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੱਲ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਇੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿਰਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਡੇਟ ਕੈਲੰਡਰ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰ ਕੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, keep on looking your options and decide on it but not in a hurry। बस सिंपल एक ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਲੋ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਡੈਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ जी। अगर ये चीज किसी को समझ आनी शुरू हो जाए कि कोई भी मार्केट से हाउस, मेरे पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं पिछले 15 साल से, मार्केट गिरेगी तो लूंगा, मार्केट गिरेगी तो लूंगा। 15 साल से सर मार्केट 3 गुना हो चुकी है, अभी भी वो भाई साहब मार्केट गिरेगी तो लूंगा कह रहे हैं। वो क्या मार्केट गिरेगी, कितनी गिरेगी ये मुझे समझ नहीं आई अभी तक। मार्केट बढ़ रही है मैं इसलिए नहीं लूंगा, मार्केट गिरेगी तो लूंगा। मार्केट गिर गई है भाई साहब, नहीं अभी और गिरेगी जी। अच्छा उसका पीके जी अब क्या हो रहा है, मार्केट बढ़नी शुरू की, बढ़नी शुरू की, कोई बात नहीं गिरेगी तो लूंगा। या तो उन्होंने अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। एक होती है गलत फहमी, एक होती है खुश फहमी। गलत फहमी तो ये होती है कि बंदा बेचारा गलत फहमी, उसको पता है कुछ नहीं क्या हो रहा है। एक होती है खुश फहमी, पता सब कुछ है पर वो पता नहीं करना चाहता, दैट इज कॉल्ड खुश फहमी। तो कई लोग खुश फहमी में है कि मार्केट पूरी गिर जाएगी तो लेंगे। अगर ये बात सबको पता हो गिर जाएगी तो लेंगे तो फिर तो एक भी घर नहीं बिकना चाहिए। ये बिल्कुल पता नहीं चलता। यू हैव टू बी बैलेंस्ड, हर चीज का एक बैलेंस बना के चलेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते जी। जी गिरीश जी आप ऑन दिया नेक्स्ट कॉल। गिरीश जी जी नमस्कार जी।
नमस्कार। नमस्कार। जबरदस्त साहब, एक वो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, वो कहते हैं कि बसंती जब तक तेरे पाँव चलेंगे इसकी सांस चलेगी, है ना। जी। अब ये मुझे बताओ कि जब ये रेट जब तक बढ़ता रहेगा तब तक क्या घर के दाम भी बढ़ते रहेंगे क्या? वो तो सबको पता है कि रेट बढ़ेंगे। नहीं, दाम तो गिर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं। वही तो जब पता है कि अभी तो 2% तक और बढ़ना है ना, 1.5 से 2% और बढ़ना है, तो फिर इसके बारे में क्या बोलेंगे? तो गिरेगा ही। नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, क्या कोई डेट फिक्स है सर? 2% और बढ़ेगा और आपने कह दिया कि मार्केट और गिरेगी, और जब मार्केट सारी गिरने की वेट कर लेंगे, पूरी गिर जाएगी, तो क्या तब रश नहीं पड़ेगा? जैसे अभी युद्धवीर जी ने कहा, तब क्या होगा? सवेरे कुछ रेट, शाम को कुछ रेट, तो फिर मार्केट हार से निकलेगी, आपकी चॉइस कम हो जाएगी। आप इन्वेंट्री आप देखना, देख के घर पहुंचोगे तो पता चलेगा जी मार्केट घर बिक गया, आपकी नेगोशिएशन खत्म हो जाएगी, नेगोशिएशन हो नहीं पाएगी। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रूल है ये। आप अगर इस सिनेरियो की आप वेट कर रहे हैं कि जी मार्केट में सब घर लेके खड़े होंगे और मैं कॉपी पेंसिल लेके चूज करूंगा, भूल जाइए इस बात को, ऐसे नहीं हुआ करता। अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा और मार्केट और गिरेगी, करते रहिए वेट, और आप ही कहेंगे इसी एडिशन में आगे ये झटके से बढ़ गई जी, मुझे तो समझ नहीं आया कब गिरी कब बढ़ गई। देयर हैज टू बी बैलेंस। मार्केट गिरी है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आज ले लो, मैंने कहा है कि आप सोच समझ के अब ठोक बजा के आराम से लो, पर लो, मार्केट से बाहर मत हो जाओ क्योंकि ले नहीं पाओगे। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਔਲਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਨਵਦੀਪ ਔਲਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। हाँ जी भाई जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਾਵਤ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਐ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇ ਸਭਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ WhatsApp ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਸੂਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ पढ़ के। बीवी ने शोहर से पूछा किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। बीवी ने शोहर से पूछा किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शोहर बोले मौसम का तो पता नहीं, पर जब सच बोलो तो मिर्चें लगती हैं। हाँ जी, ये भाजी बहुत वधिया। एक भाजी होर गल है, मैं एक होर गल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੋੜੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਆਏ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1500 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਬਈ ਗੋਰੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਚ ਕੇ ਸੰਡੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੂਈ ਵਟਾਨ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵਟ ਨੋਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਧਰ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਖਰਚ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਪ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਬਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਆਊਟਡੇਟਡ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਪੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟਿਮ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਚ ਡਿਲੀਵਰ ਉਬਰ ਕੋਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਾਈ,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁकीज वगैरह बिस्किट सब कुछ पिया हुआ है, पर उन्होंने फिर भी मंगाना है। अच्छा, वो छोटी जी सैलरी $16-17 पर आवर की सैलरी, तो फिर मैं एक दिन रहा नहीं है, मेरे बच्चे वगैरह की मतलब एक ग्रैंड किड वगैरह ने मैं समझाया ना कि बेटा मैंने गल दस कि is it important for you in this life to do all this nonsense or more important is to save some money for future। मैं एक दिन थोड़ा तो मैं एक मिनट एक लाइन कह के खत्म करता, लेकिन मैं बैठ के एक दिन उन्होंने लेक्चर देता, लगा यू गो अहेड व्हाट एवर यू, आई एम नोबडी टू इंटरफेयर, बट दिस इज द वे टू डू इट कि ऊपर को तुम लंच भी मंगा रहे हो और तुम कल्ले इतने रहते हो, 4-4 5-5 कुड़ियां इकट्ठे रहते हो, तुम तो खाना क्यों नहीं बना सकते अपना भाई, तुझे अगर वाकई सेविंग करनी है और ये सेविंग हैगी इन्नी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी बाद कि तुम जिन्नी मर्जी ऊपर करके गाड़ियां सामान मंगाते रहो, लेकिन ਇਹ टाइम नहीं है ऊबर वाला कि तुझे सब खाना मंगाते रहो, लंच रोज ही लंच मंगा रहे हो, रोज ही कॉफी भी मंगाते हो ऊबर ही। मेरे ऑफिस ही हूँ बंद मैं देख रहा कुछ होया पाया, शायद असर हो गया या कुछ हो गया, आई डोंट नो, पर मैं देखा है बच्चों के अंदर, यू आर वेरी राइट सर, कि उन्होंने समझ ही नहीं आती है गल कि ड्राइव थ्रू करके चलो जी तुम कितने मोटे को ले लो जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 41 ਹੈ ਏਜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਬਣ ਗਏ, ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਵਧੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ $2 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ $7-8-9-10 ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਿਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਕੈਪੇਚੀਨੋ ਔਰ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲੀ 10 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕਿਚਨ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸਟਾਰਬਕਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ। कई बार गुड फील वास्ते भी कहते हैं खुद में बड़ा गुड फील होता है जी, मैं जरा दिखावा करके गुड फील हो रहा है या एक्ट करके मैनू बड़ा चंगा लग रहा है, उन्होंने सैटिस्फैक्शन हैगी होने दे, उन्होंने सैटिस्फैक्शन उन्होंने कई बार असीं पुराना कहते होंगे सी ना, तीला दंद मारदे बाहर आ गया, घरों खा के आया मूंगी दी दाल, बाहर कह रहा यार जरा मीट कच्चा सीगा, तो वो खुद नू खुश कर रहेगा करन दिओ। ओके जी, थैंक यू। एक होर भी चीज होंदी है, एक होर भी चीज मैं एक थोड़े जिहा आपदे 5 सेंट दे देवां इहदे च। कोई 2 तरह के लोग होंदे ने सर, एक तो वो होंदे ने जिहड़े आपदी गलतियां तो या पेरेंट्स तो सिख लैंदे ने ये चीज़ां करनियां कि यस या जिवें तुसीं बैठ के समझा दिता ओनू, जिसनूं अकल आ जाएगी ओनू आ जाएगी, लेकिन जिन्नूं अकल नहीं आवेगी ना सर उन्होंने वास्ते जरूरी भी है, क्योंकि उन्होंने जल्दी ठोकर लग जाए तो ज्यादा वधिया, अगर बाद की जिंदगी ठोकर लगेगी ना समझना मुश्किल हो जाता। जिस जिंदगी च उन्होंने ऊपर रिस्पोंसिबिलिटियां नहीं हैगियां कोई भी, वो खुद हले छोटे ने, उदों ठोकर खाना ज्यादा वधिया है दैन पूरी रिस्पोंसिबिलिटियां दे नाल ठोकर खान, फिर वो जिंदगी च खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये 2 तरह के लोग ने मेरे हिसाब नाल, जेडे नहीं समझते उन्होंने ठोकर हुणे ला देनी चाहिए, उन्होंने तो कहना चाहिए पुत्र होर 2 कॉफियां होर मंगवा लै आपके बैंक चो, ताकि की समझ आ जाए कि होर 6 महीने तेन समझ आ जाए, पैसा जो खत्म हो जाता है फिर घरे बना के पीनी पैंदी है कॉफी। तो कई बार उस कॉफी वास्ते पैसे नहीं बचते, घर वाले कॉफी वास्ते भी पैसे नहीं बचते कई बार जी, फिर कटोरा लेके घूमना पैंदा बाहर जी। बिल्कुल अगली कॉल ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 6 ਹੈਗੇ ਆ ਜੰਗ ਕਿਡ, ਏਜ ਹੈਗੀ 24 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ।
ਇਹ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 9 ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਯੰਗ, ਸੋ ਯੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੌਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 125 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਤੱਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਮਿਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸਾਗਾ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਬੈਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ 3 ਘਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਿੰਗ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਚੜ ਗਈ, जबकि मॉर्गेज टोटल 6 लाख हैगी, तो 3 गुना मॉर्गेज हो गई और शेयर 1/3 हैगा, इट इज ए वेरी राइट थिंग टू डू कि जिन्नी जल्दी है जॉइंट तो बाहर निकल जान वो ज्यादा चंगा है, निकल जान। ਇਹ ਤੇ ਹੋਗੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਮੌਰਗੇਜ, ਜਦਕਿ 6 ਲੱਖ ਮੌਰਗੇਜ ਟੋਟਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ 6 ਲੱਖ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਝਗੜੇ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, या कमाई बिल्कुल ना हो रही हो या कमाई बहुत ज्यादा हो रही हो, उस वक्त पार्टनर से झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब मेडियोकर जब रेगुलर चल रहा होता तो झगड़े कभी नहीं होते। मैं मेरा तजर्बा जिंदगी का, तंगी ज्यादा झगड़े शुरू हो जाते हैं या उम्मीद तो ज्यादा पैसे आ जाते हैं ता झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इस करके बड़ी चंगी अकलमंदी है सर, मैं गाइड कर देंगा। लेकिन मैं एक बात दस दें, जिस तरह वो उत्थे जा रहे हैं मस्कोका वाल या बेरीवाल, उत्थे मार्केट्स ज्यादा डाउन हुई हैं इस वक्त बजाय हॉट स्पॉट्स तो, उत्थे मार्केट ज्यादा डाउन हुई ने, तो उत्थे भी सोच समझ के लैन, मैं प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगली कॉल जी अनिल जी, तो आप ऑन दे रहे, अनिल जी को हेड। हाँ जी, समाज सेवा को प्रतिबद्ध दोनों महानुभावों को बहुत बहुत शुभ दिवस जी। शुभ दिवस सर, थैंक यू जी। हाँ जी, मैं पंकज जी, मैं मुख्य विषय आज मेरा आपके साथ है और हमारे साथ जगदीप जी भी हैं, पीके जी भी हैं। मैं जब इसके सारांश के विषय में इनकी टिप्पणियां चाहूंगा जब हम इस विषय को समाप्त कर लें। पंकज जी, पिछले सप्ताह की जो चर्चा उसको आगे लेके जाना चाहूंगा जहाँ पे आपने समाप्त किया था। आपने इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे थे, काफी गहन चर्चा हो रही थी, लेकिन एक और मेरा सभी से आग्रह है कि देखिए इनकी प्रतिभा का हमें दोहन करना चाहिए। इनकी प्रतिभा का यदि हम दोहन नहीं करते हैं तो इनके समय को हम खराब कर रहे हैं। तो ऐसे विषय आने चाहिए कि इनकी प्रतिभा निकल के और बाहर अच्छी तरह से निकल के बाहर आए। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि देखिए इन्फ्लेशन जो होती है इसके ऊपर आपने अपने विचार व्यक्त किए थे कि जो ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है ये बिल्कुल सही काम है, ठीक है जी? सहमत आप इसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ऐसा तो पंकज जी, जो समस्या होती है, समस्या की जड़ के ऊपर प्रहार करना होता है या दाएं बाएं प्रहार करना होता है? जड़ पे प्रहार करना होता है। जो इन्फ्लेशन है इसकी समस्या की जड़ कहां पर है? ग्रोथ। अच्छा, तो ये ग्रोथ जो है नहीं, जो इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ी हुई है इसकी जड़ कहां पर है? इसकी जड़ है कि लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं, उनको पैसा फ्री ले लिया गया है हाथ में और वो ग्रोथ को बढ़ाए जा रहे हैं और पीछे से सप्लाई नहीं है। सप्लाई जो है, कई रीजन है यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेन होने के। एक तो वॉर भी बनी हुई है जो मेजर इशू बना हुआ है वॉर का। सेकंड चीज, चाइना की जो जीरो पॉलिसी है, जीरो
कोविड की, वो थोड़ी सी भी कुछ चीज होती है वो अभी भी पूरी जगहें बंद कर देते हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हैं। तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वही चल रही हैं कि हमें सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है और लोग पैसा खर्चे जा रहे हैं। हाँ, तो उसको अब क्या करना है कि उनके हाथ से पैसा निकाल के बेसिकली, ताकि हम ग्रोथ को स्लो कर सके और जितनी भी सप्लाई आ रही है उसको मैच कर सके, तो इन्फ्लेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, महंगाई कम होनी शुरू होगी। हाँ, थोड़ा मेरा इसमें आपके साथ विरोधाभास है। जब आपके सामने देखिए, ऐसा होता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले विगत कुछ वर्षों से, समस्त विश्व में लोगों को जो पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित कैसे किया जा रहा है? कोविड के नाम पे चाइना को वो का नाम लगाया गया। आज तक इस हम आधुनिक युग के अंदर इस समस्या का हम जड़ नहीं पकड़ पाए कि उसकी जड़ कहाँ पर थी। आज तक दोष तो चल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं पकड़ पाए कि ये क्यों हुआ था। अच्छा, अब उसके बाद हम उससे अभी संभले भी नहीं थे। उसके कारण हमारी चेन लाइन टूटी, लोगों को धन बांटा गया। उस धन को बांटने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा करके भी दिया जा सकता था, क्योंकि धन अपना नहीं तो व्यक्तिगत होता तो दिया जाता। जब मीटर की जगह लाठी का प्रयोग किया जाएगा कि खाली मेरे को, तो हमारा तो राजनीतिक उद्देश्य है। तो कुल मिला के उस सारे विषय के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर एक अराजकता फैल गई। उस अराजकता को पहले तो देखो, सबसे पहले कोविड का एक वो चीज लाके वहां रखी गई जिसका कोई अता पता नहीं है। ये कोई प्राकृतिक विषय नहीं था। ये एक होती है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा एक अलग विषय होता है, एक मनुष्यों के द्वारा लाई हुई आपदा एक अलग विषय होता है, जिनके अंदर उसके अंदर निहित स्वार्थ होते हैं, जब कोई व्यक्ति लेकर आते हैं और वो पक्ति को पकड़ नहीं पाए कौन लेकर आया है। अच्छा, अब उसके बाद क्या, उसमें लाभ किसका हुआ? जिनका लाभ हुआ हो तो ये काम तो वैसे जो शंका की जो दृष्टि है वो तो उन्हीं के ऊपर जाएगी जिन्होंने उसके ऊपर लाभ कमाया। अब आते हैं हम अगली बात पे। अच्छा, हम कोविड से अभी हम संभले भी नहीं थे। कोविड को संभलने के बाद एक यूक्रेन का विषय आ गया। यूक्रेन का विषय बड़े आराम से निपटाया जा सकता था, कोई समस्या ही नहीं थी इसके अंदर, लेकिन उस विषय को और तूल दी गई। आग के अंदर ज्वलन प्रशील पदार्थ डाले गए, समस्त ज्वलन प्रशील पदार्थ जितने भी हाथ में सारे डाल दिए उठा के। और वो हुआ क्या कि आम तेल का प्राइस जो है वो बढ़ गया, उसकी कीमत आगे बढ़ गई। लोगों और उसकी जैसे कीमत तेल की बढ़ी, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की बात कर रहा हूं मैं, विलासितापूर्ण की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो आवश्यकताओं के लिए भी व्यक्ति को आगे जो समस्या आ गई। ठीक है, ये हो गया आपके महंगाई का मुख्य कारण। महंगाई का पहला मुख्य कारण था आपका कोविड, दूसरा था आपका मुख्य कारण ये वाला काम। ठीक है, अब इस सारे विषय के अंदर जो आम नागरिक है, जिसे को बेचारे को इन चीजों का पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, ठीक है जी, जब उनको ये पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, वो उस विषय के अंदर बीच में लपेटे गए। अब ये तो जो काम है ये तो हुआ ही हुआ जो हुआ। अब उसके बाद तगड़ी चोट मार दी गई इसकी, अपना जो इंटरेस्ट की। अब जो इंटरेस्ट की चोट के बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट की चोट के बाद क्या हुआ कि जो आम नागरिक है वो सैंडविच बन गया। जैसे सैंडविच के दोनों तरफ से प्रहार किया जाता है ना, आम नागरिक जो ईमानदार करदाता है उसको सैंडविच बना दिया गया। अब ये देखिए, इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के बाद हर आम ईमानदार टैक्स पेयर जो टैक्स को ईमानदारी से भुगतान करता है, वो उसको ज्यादा पेमेंट देने के लिए उसको मजबूर किया गया, वो करेगा भी। सारे बैंकों के पास अच्छा खासा धन जाएगा, वो पैसा धन जाएगा। मुझे बात में समाप्त करनी है, प्लीज मैं आपको वहीं पे ला रहा हूँ। देखिए, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो टैक्स का जो इंटरेस्ट का जो पैसा ज्यादा चला गया, और उधर से आपकी आवश्यकताएं उनका धन भी ज्यादा चला गया। जो नागरिक है वो सैंडविच बन गया। अब आपने कहा कि लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अब बहुत ज्यादा खर्चे की बात सुन लीजिए। मैक्सिमम ज्यादातर जो लोग हैं कनाडा के अंदर पे चेक टू पे चेक चलते हैं। समृद्ध लोगों की श्रेणी को बहुत कम है, वो 2-4-5% ही होगी। जो ज्यादा जो श्रेणी है वो हर कोई हर महीने कमाता है, हर महीने खर्चा करता है, थोड़ा बहुत कहीं बच जाता होगा।
ठीक है। तो जो धन जो है, जो 170 मिलियन की आप बात कर रहे थे, वो उन लोगों के पास है जो पहले से बहुत धनी है, उनके पास होगा उधर। तो कुल मिला के ये जो परिदृश्य चल रहा है, अब इसके अंदर आप कह रहे हैं कि लोग खर्चा कम करना चालू कर देंगे। देखिए, जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था एक चेन की तरह होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, पहली कड़ी से अंतिम कड़ी तक जाके साथ में जुड़ जाती है। अर्थव्यवस्था को जो प्रभाव मिलता है, जो ताकत मिलती है, हर वर्ग के साथ में, हर व्यापार के साथ में चलने से मिलती है। अगर लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा तो यानी कि कहीं वो खर्चा कम करेंगे, जब वो खर्चा कम करेंगे तो वो जो काम है वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाएंगे। पंकज जी, सारी कड़ियों को आप जोड़िए। आप सबसे पहले कोविड की कड़ी को जोड़ो, उसके बाद यूक्रेन की कड़ी को जोड़ो, उसके बाद सारी जो कड़ियां जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पहले जैसे होता है ना, एक डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति एक हल्का दाना हो गया, दाना लेके गया तो उसने कहा जी मेरे दाने का इलाज कर दीजिए आप। उसने उसको और साइडों से उघेड़ के उसने उसको 10 इंच का जख्म बना दिया। 10 इंच का जख्म बनाने के बाद फिर कहता मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा वातावरण नहीं लग रहा आपको कि जो आम जो नागरिक हैं, जो उन लोगों को एक समस्या के अंदर उलझा के डाला गया, अब उनके ऊपर इंटरेस्ट भी डाला जा रहा है। अब उसको कुल मिला के कहीं ना कहीं ये कुछ वातावरण कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद पीके जी और युद्धवीर जी दोनों का जरा मैं इसके ऊपर कुछ सारांश चाहूंगा। जी अनिल जी, आपने बहुत लंबी इशू खड़े कर दिए, मैं इसको बड़ा छोटा सा आंसर में दे देता हूँ। आपने 2 इशू खड़े किए, एक इशू खड़ा किया है पॉलिटिकल, एक इशू खड़ा किया है फाइनेंशियल। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशन में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्यों पैसा दिया गया, क्यों ये वॉर हो रही है, ये सारा कुछ है, ये पॉलिटिकल है। अब जैसे आपने साथ में एग्जाम्पल दिया ना एक डॉक्टर का, मैं इसको डॉक्टर के साथ भी मिला देता हूँ। बेचारे लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगहों पे जहां पे उनको कैंसर हो जाते हैं, कई सेकेंड हैंड स्मोक में, चलो यहाँ तो बंद है लेकिन बहुत सारी दुनिया में अभी भी स्मोक कर रहे हैं लोग, और ये ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप जाके काम करते हैं, जहां पे आपको उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल को तो आप वो कंपनीज ले लीजिए जहां से जिनकी वजह से बीमारियां हो रही है आम आदमी को। अब आम आदमी या तो डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर कहता है भैया तुम्हें कैंसर हुआ है, मुझे तो कीमो करना पड़ेगा तेरे को बचाने के लिए। अब कीमो करूंगा तो तेरे को दर्द भी होगा, तेरे को उठा भी नहीं जाएगा, लेकिन अब उसके अलावा कोई चारा नहीं। पॉलिटिकल जो भी उन्होंने कर दिया है ये सारा काम। अब जब बैंक ऑफ कनाडा आता है, जब फाइनेंशियल आता है, फेड हेड आता है, उसको पॉलिटिकल से मतलब नहीं है। उसको ये देखना है कि इस इकोनॉमी को मैं रिसेशन से कैसे बचाऊं, इस बीमारी को मैं कैसे खत्म करूं। उस बीमारी को खत्म करने के लिए मुझे ना तो ट्रूडो जी से मतलब है, ना मुझे ये फोर्ड साहब से मतलब है, ना मुझे जेसन कैनी जी से मतलब है। मुझे तो इस कंट्री की अर्थव्यवस्था को संभालना है जो उन्होंने क्रिएट की है, या जो ट्रंप साहब ने क्रिएट की है, जो भी वो पुतिन है उन्होंने क्रिएट की है। मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है इस मरीज को बचाऊं कैसे, इस अर्थव्यवस्था को बचाऊं कैसे। तो मुझे अब वो कीमो करना पड़ेगा, लोगों को पेन देना पड़ेगा, तभी मैं इस अर्थव्यवस्था को बचा सकता हूं। मैं बस वो कर रहा हूं। ये सारांश है सर इस चीज का। तो सैंडविच के बारे में क्या विचार है? सैंडविच बन गया आम नागरिक। सैंडविच, मैं वही तो कह रहा हूँ, कीमो करवाने वाला भी बेचारा सैंडविच बन गया। तो उसको जो बीमारी घर के अंदर भी मोंगा साहब, ये नॉट ओनली दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज ए वर्ल्ड एज ए होल, बट हर घर के अंदर भी ये बातें आती हैं बॉस। कुछ सालों के बाद रुको भाई, थोड़ी तंगी हो रही है, खर्चों के ऊपर बिहेव करो, थोड़ा सा ध्यान दो, फालतू खर्चे थोड़ा कम करो, या यहाँ से थोड़ा खर्चा बचाओ, वहां ज्यादा करो। हम घरों में भी एडजस्टमेंट करते हैं भाई, हम इंडिविजुअल भी करते हैं कि भाई कुछ खर्चे कुछ ज्यादा हो गए, अब थोड़ा हमें कंट्रोल करना चाहिए, या अब ये हालात कुछ बदल रहे हैं अब, या जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर चोरी नहीं होती, यहाँ पर क्रिमिनल्स नहीं है, ऐसी जगह में आप दरवाजे खुले करके चले जाते थे। अभी भी कई जगह ऐसी हैं, पर जब पता चला 2-3 बार हादसे हुए तो फिर घर में बैठ के सोचा जाता है, ग्रिल लगा दी जाती है, सिक्योरिटी अलार्म लगा दिए जाते हैं। हालात के हिसाब से हम घरों में भी सोचते हैं, इसी प्रकार इकोनॉमी में भी सोचा जा रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कई बार आपके मैन मेड होते हैं, कई बार आप खुद नहीं कर रहे, पड़ोसी की वजह से हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर रशिया यूक्रेन की वार कर लो, या ओवर स्पेंडिंग हो गई, या ये आपका
कोविड आ गया, तो हालात सोचने में मजबूर करते हैं, उसका हम उपाय ढूंढते हैं। मैं तो बड़े सिंपल शब्दों में एज ए लेमैन ये बात कह सकता हूँ, दैट्स ऑल। सर एक और उसमें कई लोग पिसते भी, उसमें कई लोग पिसते भी हैं, उसमें कई लोग पिसते भी हैं, जिसे कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है कई बार, वो होता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आदमी सैंडविच बन जाता है कई बार, उसमें बेकसूर वाला भी बन जाता है कई बार। पर अगर ऐसी चीजें ना हो तो मुझे क्या नहीं लगता आपको कि जिंदगी रूखी हो जाएगी, थोड़ी सी ब्लैंड हो जाएगी, थोड़ी सी ये उतार चढ़ाव, हंसी मजाक, गुस्सा, नरमी, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, यही तो जिंदगी है। और क्या जिंदगी है? वो उठे, काम पे चल गए, शाम को आ गए, इतनी सैलरी, इतना खर्च किया, बड़ा ब्लैंड सा हो जाएगा। मुझे लगता है ये होना भी जरूरी है, जिसको मैं अक्सर कहा करता हूँ, क्लींजिंग ऑफ द बॉडी की बजाय ये क्लींजिंग ऑफ द इकोनॉमी है। सिंपल शब्द। और आप रेगुलर खाना खा रहे हैं, भोजन ढंग से कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सेहत, अचानक एक दिन अचानक कुछ गलती खा ली, पेट थोड़ा खराब सा हुआ, या ओवर ईटिंग होगी, थोड़ा रात का खाना थोड़ा मिस करते हैं यार। दैट इज सेम थिंग हैपनिंग विद द इकोनॉमी। थोड़ा रुका जाए, थोड़ा तंग हुआ जाए, एक ढंग का खाना कम किया जाए, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को ठीक कर लेते हैं। ये मैं साधारण शब्दों में कह सकता हूँ उसका जवाब। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही है। अनिल जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा पहले, पता क्या है, आपने जो इशू खड़े किए थे ना, वो सारे पॉलिटिकल इशू खड़े किए थे। हम यहाँ इकोनॉमी को, मैं एक एज ए बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से या इकोनॉमिस्ट उस तरह से देख रहा हूं कि क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, कैसे कर सकता हूं मैं जाके। ट्रूडो साहब ने तो अभी पिछले दिनों वो फाइनेंस मिनिस्टर ने पता नहीं और क्या क्या उन्होंने पैकेज दे दिए, जो कि मेरे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बैंक ऑफ कनाडा के लिए वो प्रॉब्लम है जो उन्होंने अनाउंस किया है पिछले दिनों $billions, क्योंकि मैं तो यहाँ इंटरेस्ट बढ़ा के ग्रोथ रोकना चाह रहा हूँ, वो पैसा फिर से फ्री बांटने में चले हुए हैं। तो पॉलिटिकल इशू अलग है, जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा वो अलग है, क्योंकि मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उस पर आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अनिल जी, जब आप वोट डालने जाते हैं, आप उस बंदे को चूज ही नहीं करते हैं जो बंदा एक्चुअल पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। चलो एजुकेटेड तो सारे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, पढ़ा मतलब उस एरिया की नॉलेज रखता हो। हम तो वोट डालने जाते हैं जब, या हमें तो इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाना है जी, हमें तो इस बंदे को प्रीमियर बनाना है जी, तो नीचे जो मर्जी खड़ा हो, हमें उसका मतलब ही नहीं होता। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं उनका क्या उन्होंने किया है काम, कितना उनका पहले उनका था, क्या एरियाज में उन्होंने वर्क किया है, कौन सा एरिया वो संभाल सकते हैं, क्या हम ये सोचते हैं? तो पॉलिटिकल को तो आप साइड में रहने दीजिए, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व होने वाला नहीं हूं। मुझे तो ये देखना है ये बीमारी कैसे खत्म होगी। जो उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज जो खड़े किए हैं, जिन्होंने जो भी हैं, वो चाहे वो बाइडन है, ट्रंप है, या पूरी दुनिया में जिन्होंने भी वॉर करवाई है, या चाइना वाले हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये देखना है कि अब इस कंट्री में महंगाई बढ़ी हुई है, एक बीमारी लगी हुई है जो कि उन्होंने क्रिएट किया है, मैं उसको ठीक कैसे करूं? अब मुझे कीमो करना पड़ेगा, मुझे दुखी देना पड़ेगा, ताकि तुम लोग समझो तो सही कि अब मैं तुम लोगों को तंग करूंगा। अगर तुम्हें तंग हो रही है, तुम सैंडविच बन रहे हो, तो कम से कम ये सोचना तो शुरू करो कि अगली बार वोट किसको डालना है, ताकि हम सैंडविच ना बन पाए। सो बेसिकली ये दो अलग इशू हैं। अब मेरे पास ये चांस नहीं है कि मैं क्या करूंगा, मैं तो एक वोट डाल के आ सकता हूँ, उसके बाद मैं जो इस इकोनॉमी के लिए कर सकता हूँ वही करूंगा। बस वो वोटों के लिए कर रहे हैं, मैं इकोनॉमी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन पंकज जी, आपने जो कहा कि खर्चा कम होएगा, तो उसमें कुछ व्यापारों को, जब व्यापार कुछ बंद होंगे तो उससे हम आगे और समस्या, गहरी समस्या की तरफ नहीं बढ़ जाएंगे। नहीं जा रहे। ये आप एक बात बताइए मुझे, 2007 कितनी पीछे है सर? 15 साल पीछे। 2007 कोई भूला तो नहीं होगा वो रिसेशन? उससे पहले हमारा प्राइम रेट 6.25 था। 2007 में निकाल के देख लीजिएगा, आज कहीं भी गूगल पे सर्च मार लीजिए, 6% हमारा इंटरेस्ट रेट था प्राइम 2007 में। तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी? हमने क्रिएट की है ये सारी प्रॉब्लम। तो 6% वापस चला भी जाएगा तो हर्ज क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं, ताकि लोग कम खर्च सके। बिजनेस उस वक्त भी तो खत्म हो रहा था। कितने लोग, आप ये बताइए, 2008 के रिसेशन में कितने लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे, कितनी कंपनियां बंद हो गई थी? क्या दोबारा कोई कंपनियां नहीं खड़ी हुई उसके बाद? वो जब पुराने वाले जब गलतियां करते हैं,
गलतियों की वजह से भी होता है, ठीक है, ऊपर से भी प्रेशर आता है। अगर वो खत्म होती हैं तो नए एंटरप्रेन्योर बहुत बैठे हैं जो नई चीजें शुरू करेंगे, नए नए व्यापार बहुत शुरू होते हैं। तो ये कहना कि पुराने खत्म हो जाएंगे तो आगे हम चलेंगे नहीं। सर टेलीफोन पता है वो घुमाने वाला आता था, वो कंपनियां बंद हो गई। जो सीडी भी बनती थी ना, सीडी, अभी पिछले दिनों हम सीडी यूज करते थे, वो कंपनियां खत्म हो गई। कोडेक जैसे कैमरे जो आते थे ना, कोडेक मूवमेंट, वो कंपनियां खत्म हो गई। लेकिन नई कंपनियां, नया इनोवेशन होता रहेगा। ये कहना कि वो कंपनियां खत्म हो गई तो हमारे आगे क्या होगा, नई कंपनियां आएंगी, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी दर्द देना जरूरी है, नहीं तो हम बुरी तरह से मर जाएंगे। नहीं पंकज जी, मैं पुराने व्यापार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि लोग खर्चा कम करेंगे, तो जब खर्चा कम करेंगे तो कुछ व्यापार उससे बाधित होंगे, उनको परेशानी होगी, उनके व्यापार कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। तो मेरा कहने का सप्लाई नहीं है जी, सप्लाई नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा जब खर्चा कम करें ना करें। एक साल की तो वेटिंग है कई सामान के ऊपर, सप्लाई कम करें होगी। और वैसे ही जिसे कहते हैं खर्चा कम होना जरूरी है। एक सप्लायर दे ही नहीं पा रहा, बैकलॉग में चल रहा है, बैक ऑर्डर में चल रहा है, तो क्यों नहीं इसको कम कर दिया जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सर। अनिल जी युद्धवीर जी, सारे परिदृश्य के ऊपर आपकी टिप्पणी, क्योंकि देखिए हम जो लग रहा है, हाँ इस समय समस्त विश्व एक षड्यंत्र से जो है दो चार हो रहा है। जो पहले उसको, क्योंकि कोविड का कोई सर पैर नहीं है, उसके बाद ये समस्या आई है, इसे निपटा जाता है, निपटा नहीं गया। अब उसके बाद फिर अगली मार लोगों के ऊपर दूसरी पड़ रही है। तो कुल मिला के सारी श्रृंखला बनी हुई है। इस श्रृंखला के ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अपने पंकज जी ने, पीके जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यस, ये एक श्रृंखला बनी हुई है। लेकिन इसको अगर आप श्रृंखला को ब्रेक कहाँ से करते, अगर आप उस समय पैसे ना देते। एक मिनट के लिए मैं दूसरी साइड भी कह रहा हूँ कि अगर आप, जब कोविड का क्राइसिस आया, अगर उस समय सरकार पैसा ना देती तो क्या करती। हालांकि गलती की है, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था, पर प्रिपेयर नहीं थी सरकार। तो अगर सरकार उस समय पैसा ना देती तो चैलेंजेस और बढ़ सकते थे। उस समय लोगों की बैंक्रप्सीज हो सकती थी। अब देखिए, बाय एंड लार्ज कनाडा ने, अभी कल रिपोर्ट आई है कि कनाडा ने बाकी कंट्रीज के मुताबिक हमने इवन G7 कंट्रीज में हमने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। मैं कोई सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सरकार की नालायकी शुरू से कही। जब इन लोगों ने बॉर्डर्स बंद नहीं किए, दुनिया भर से लोग यहाँ आते रहे, मैं बहुत कह रहा था बॉर्डर बंद करो, ये वायरस कोई सीधा नहीं आ सकता, हवा से उड़ के नहीं आएगा, सब समुद्र से, ये बाई एयर आ रहा है। तब वो नहीं, तो हमने सरकार की जो गलतियां थी या नालायकियां कुछ कह लो, हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत सवाल किए सरकार के ऊपर। लेकिन जो पैसा देने की बात है ना, मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ सर, आप याद रखना मेरी बात, अगर पैसा ना दिया जाता तो यहाँ पर हाहाकार मच जाती, रिसेशन आ जाता, बहुत भयंकर रिसेशन आ जाता। क्योंकि पता क्या है, दो अनसर्टेनिटीज आप इकट्ठे नहीं फेस कर सकते। एक अनसर्टेनिटी कि ये कोविड खत्म कब होगा, आपको पता, मैं अपनी बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ, ठीक है नहीं। मैं उस समय ये सोच रहा था कि शायद मुझे सारा बिजनेस समेटना पड़ जाए। आप अंदाजा लगाइए, हमारे पास आज, अगर मैं इंडिया के सामने, कम से कम हम 50 लोग दाल फुल्का खा रहे हैं, और हम 50 के 50 लोग, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, एतराज नहीं है, हम 50 के 50 लोग दाल फुल्का ही चल रहा है हमारा ये बाय मीडिया से। हमारे पास कोई $1 मिलियन $5 मिलियन थोड़ी पड़ा था कि मेरे पास $100 मिलियन बैंक में है, मुझे फर्क नहीं। मैं आज ऑन एयर एडमिट करता हूं, अगर ये पैसा ना दिया, वेज सब्सिडी दी उन्होंने, पैसा दिया, इससे बहुत सारे बिजनेसेस बचे, बहुत सारे लोगों के घर बच गए। क्योंकि आप परेशान है उस समय कि आपको एक तो मौत का डर है, मैं सीधी बात आज खुल के करता हूं, हम सवाल जितने मर्जी खड़े कर ले, लोगों को मौत का डर सता रहा था। लोग यहाँ हॉस्पिटल में नहीं जाने से डर रहे थे, लोगों को मौत का डर सता रहा था। आप उसमें पैसा भी ना दो लोगों को, फिर क्या होता, लोगों डबल बहुत बड़ा झटका लगना था। अच्छा किया सरकार ने हाँ, उससे महंगाई बढ़ गई, उससे बहुत सारी दिक्कतें आई, वो अलग चैलेंज है। लेकिन अगर वो ना करती सरकार, आपको पता है अनिल जी कितना बड़ा चैलेंज या कितना बड़ा क्राइसिस आ सकता था। मैं खुद सोच रहा था, मैं अप्रैल में मेरी वाइफ ने बड़ी अच्छी बात की, पहले बात उन्होंने बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा क्या होगा युद्धवीर, सारा बिजनेस बंद कर देंगे, जो हमारे साथ काम कर दे उनको रिक्वेस्ट कर लेंगे, भाई 6 महीने साल सब्र कर लो, और 2021 जनवरी में नए सिरे से 2 घंटे का रेडियो शुरू कर लेना। तुम्हें रेडियो तो करना आता ही है ना, वो तो नहीं भूल जाओगे, टीवी करनी आती है तुम्हें, अखबार चला लेंगे फिर से, क्या हो जाएगा। हम इस हालात में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वाई मीडिया
इतना बड़ा क्राइसिस था, मैं खुद नहीं समझ आ रहा था कि होना क्या है। वो तो ऊपर, सबसे पहले उस ऊपर वाले का शुक्रिया था कि उस परमात्मा के बिना तो कोई चीज हो नहीं सकती, ठीक है। फिर मैं कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करूंगा, आप सब लोगों का भी, अनिल जी, सारी कम्युनिटी का हाथ जोड़ के। मैं तो बार बार आप लोगों का ऋणी हूँ, इतनी कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट है। फिर मेरे स्पॉन्सर्स का, ये पीके जी ने मुझे शायद मना कर दे, टोक दे, ये पंकज जी जैसे भाई हैं हमारे पास, पंकज मोंगा जी जैसे खड़े हैं कि कभी जरूरत है अपा खड़े हैं। आपको पता है पीके जी ने गुरप्रीत जी को क्या फोन करके कहा? साल दे 2 साल दे पैसे, मेरे को नहीं कहा, गुरप्रीत को फोन कर रहे हैं, साल 2 साल दे पैसे पहला ले जाएगा। ऐसे भाई खड़े हैं साथ में, इनके कारण हमारा बचाव हो गया, वरना बहुत सारा चैलेंज था सर। अब हम बात कर रहे हैं पैसे क्यों दे दिए, पैसे क्यों दे दिए, ये श्रृंखला हो गई। श्रृंखला तो अगर पैसे ना देते आप रियल स्टेट, हर आदमी रियल स्टेट के पीछे पड़ जाता है, प्राइस बड़े बिल्कुल महंगे हो गए, महंगाई हो गई। अब रियल स्टेट को बाहर निकाल दो कनाडा से, यार आपको और चाहिए क्या है? सारा खर्चा तो रियल स्टेट चला रही है लोगों का यहाँ पे। अब रियल स्टेट को बाहर निकाल दो ना, ट्रकिंग बिजनेस यहाँ की कोई जरूरत। अब जितनी ये चीजें आप ट्रांसफर कर रहे हो, घर में रखनी है और कहाँ रखनी है? उस चौक पे जाके रखनी है। जितनी चीजें आपको चाहिए, ये जितना ट्रकिंग भागा फिर रहा है, हम बड़े बिजी हो गए, ट्रकिंग, हर ट्रकिंग वाला बिजी हो गया। कहाँ सामान कहाँ जाना है? वो घरों में ही जाना है। अगर घर आप रियल स्टेट को आज मिट्टी कर दो कि जी खत्म हो गया रियल स्टेट, आपकी लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है जीडीपी में, द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन जीडीपी इज रियल स्टेट। अब रियल स्टेट को बाहर निकाल दो, सवेरे कनाडा ठप हो जाएगा। है क्या कार तक तो हमसे अपनी बनी नहीं है आज तक। हमने आईफोन नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। हमारे पास अपना स्टेडियम नहीं है कि हम वर्ल्ड कप का मैच हमको दे दिया उन्होंने, लो जी वर्ल्ड कप मैच आप कर लो। 40,000 मिनिमम कैपेसिटी है आपके टोरंटो में, 40,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम कोई नहीं है सॉकर का। ये हालत है कनाडा, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आप फिर मेरी बातें सुनो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी बदतर हालात है हमारे। हॉस्पिटल चले जाओ, इमरजेंसी में 4-4 घंटे वेट टाइम है। आप इंडिया में आज जाओ, दुनिया की भयंकर से भयंकर बीमारी है, 10 मिनट के अंदर। हाँ पैसा लगता है वहां पे, पर इलाज तो होता है। तो अगर आप रियल स्टेट को भी खत्म कर दोगे, ये चीज कर दोगे, अभी महंगाई बहुत बढ़ गई, पैसा क्या दिया यार? पैसा दिया, बच गए हैं सरकार ने। हाँ जी, मेरे भाई एक्सपर्ट पंकज जी और पीके जी कुछ ऐड करना चाहेंगे जी बिल्कुल सुधीर जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पैसा, मेरे ख्याल वी स्पोक ऑन दिस इशू सो मेनी टाइम, इट वाज रिक्वायर्ड दैट टाइम। वो 6 पैसा अगर नहीं आता नीचे, तो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि बैंकरप्सी में बैंकरप्सी हो, तो स्टोरी खत्म है वहां पे। वो उस वक्त की नीड थी, इस वक्त की नीड नहीं है। वो हो सकता है आपके पॉलिटिकल पीपल कई बार गलतियां करते हैं, तो आपको चूज करना है उनको। मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से चूज करते हैं। उस वक्त उन्होंने सही डिसीजन लिए थे। उस वक्त वो अगर आज आके वो वोट कमाना चाह रहे हैं और कुछ और देना चाह रहे हैं, तो बैंक ऑफ कनाडा के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। लेकिन नीड ऑफ द आवर was like fulfilled that time basically। वो उस टाइम की नीड थी, वो उन्होंने फुलफिल की। आज की नीड जो है बैंक ऑफ कनाडा फुलफिल कर रहा है। मैं ये एक बात मैं क्विकली और कह दूं, कल डिलॉयट की रिपोर्ट आई। अब डिलॉयट की रिपोर्ट पढ़े, कल आई है डिलॉयट की ना, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सारी। मैं समय ज्यादा नहीं है, पीके जी और पंकज जी बिजी ने, सारे बिजी हैं। डिलॉयट की रिपोर्ट बड़ी अच्छी आई। अब डिटेल में कोई किसी को मौका लिखता पढ़े उसको, कल जो रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि रिसेशन वैसे आए, अगर हम इकोनॉमिक चीजें देखें, रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में नौकरियां जाती हैं सर। 1 मिलियन जॉब वैकेंसी है इस समय, 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हिस्टोरिक इस समय लो है, ठीक है। जो रिसेशन में इंडिकेटर्स होते हैं वो है ही नहीं है। कल डिलॉयट ने रिपोर्ट दी है, उसने कहा रिसेशन, अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो रिसेशन आना नहीं चाहिए। हाँ, एक वजह से रिसेशन आ सकता है। किस वजह से? अगर रिसेशन आता है इस वजह से आएगा कि अगर हम खुद ही सोचते रहे और रिसेशन आ गया, हम रुक जाए। जैसे पीके जी ने अभी कहा, वो कई लोग कहे जी मार्केट गिर जाएगी फिर घर खरीदांगा, मार्केट गिर जाएगी फिर घर खरीदा। वो मार्केट कदे भी नहीं गिरेगी। मार्केट जो बाहर ही रहोगे, फिर यही सोचते रहोगे, ठीक है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं है फिर तो मार्केट ना एंटर करो, बट जो पैसे है साल 2 साल का खर्चा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैगा सारा कुछ, फिर ठीक है। डिलॉयट ने कल बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर की है, उसको प्लीज, मैं कल भी जिक्र किया सी, उसको पढ़े कि अनसर्टेनिटी बहुत खतरनाक चीज है। अनसर्टेनिटी की वजह से इकोनॉमी खराब हो सकती है, सब कुछ खराब हो सकता है। जी पीके जी, तुसी करो फिर अगली कॉल ऑन दिया। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। मैं बल्कि जिसे कहते हैं, बड़ी अच्छी डिस्कशन आपका चल रहा मोंगा जी की, और आप दोनों की बात से बिल्कुल
जबरदस्त सहमत हूँ। जब लेकिन गवर्नमेंट पैसा फ्री बांट रही थी ना, उसमें मैं ऐड यही करना चाहता हूँ कि कुछ गलत हाथों में जो पैसा चला गया मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास, उन्होंने उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया और जो इन्फ्लेशनरी जो एस्पेक्ट आ गया उनकी वजह से जो वाकई जिसको जरूरत थी पैसे की वो कभी फजूल खर्च करे, उसको तो रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। पैसा गलत लोगों के हाथ में भी चला है। गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी में बांटना शुरू कर दिया और उसकी वजह से जिनको नहीं भी जरूरत थी उन्होंने भी ले लिया और लेने के बाद जो है उस पैसे को उनका एक्स्ट्रा हो गया, उन्होंने फजूल खर्चियां शुरू कर दी। बस इतनी सी बात मैं ऐड करना चाहता था इसके अंदर। हाँ जी, लास्ट 2 कॉल्स और फिर रैप अप करने के हुक्म आ गए ने। लास्ट 2 कॉल्स। हाँ जी, परमिंਦਰ जी ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ, ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। परमिंਦਰ ਲੋਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ 1.25% ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ $800 ਤੋਂ $900 ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ 2% ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ $2500 ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਸੋ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਘਟ ਰਹੇ ਦਿਨ ਸੋ ਦਿਨ, ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 70 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 60 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸੋ ਦਿਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹੀ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਰ, ਮਾਰਕੀਟ 2-4 ਸਾਲ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਝਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਝਟਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ 6 ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 15 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ 5-10% ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 12-13 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੂਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ 23 ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਗੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੇਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਸ ਨਿਕਲਦੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਹੈਪੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਈ ਲਵ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ऑनेस्ट। फॉर एनी रिलेटेड नीड यू कैन कॉन्टैक्ट मी 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Jidveer ji. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड वी विश यू ऑल। थैंक यू।